International Airport, and I'm very happy to see such beautiful and positive energy in the whole team which have made this day possible. And my special congratulations to the whole team at Noida International Airport, especially the Honorable Member of Parliament, our Minister from before also. He has handled the Civil Aviation Minister before, our Mahesh Sharma ji, और यहाँ के विधायक भी है हमारे धीरेन्द्र सिंह जी, and the team at Noida International Airport, Christoph ji and Tata Projects and the Ministry of Civil Aviation and members from the state government. Everyone has worked together as a team to say this, to see that today becomes a reality. And from the ministry, I can tell this point that Jewar International Airport is the most prestigious project in the whole country, especially because of the idea with which it came, as it catering for the Delhi NCR territory and also for the western Uttar Pradesh. And it is in the future also going to be a wonderful airport where not only India is going to be proud of this, but the whole world is going to be proud of the airport that is today. And which is why I need to specially thank the farmers who have made this airport a reality, and all the workers who have worked day and night to ensure that the timeline is also met. And now with the validation flight happening today, we are committed to finish the project before the end of April. And I'm once again suggesting the date to the NIA team also, so that they can complete it as early as possible. Today marks a very important occasion in the progress of the airport, and definitely whatever support is required from the Ministry of Civil Aviation, we will continuously provide so that the early operations from the airport also begin. And one thing I have to highlight about this project is that 50 million man hours have been put into making this project till now, and not a single incident has happened. I don't think any other project across the country of such scale can boast of that record. So I once again congratulate the whole team who has made this possible. जेवर एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल रन रहा है, जहां पर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी और उसके बाद से युद्ध स्तर पर यह काम चला। जैसे कि आपने अभी सुना, इसमें 50 मिलियन मैन आवर्स लगे हैं इसको बनाने में, और जितना भी समय इसको बनाने में लगा उसमें कोई भी कैजुअलिटी बीच में नहीं हुई है, यानी एक स्मूथ तरीके से काम जो है चलता हुआ आया है। और यहाँ पर आज जो ये ट्रायल रन रहा वो सक्सेसफुल रहा है। और आपको खासियत भी बता रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, टीवी स्क्रीन पर दिल्ली एनसीआर में हवाई यातायात दबाव इसके जरिए जो है कम होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है, यानी वहीं पर ज़्यादा क्राउड रहता है। तो कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट के बनने से वहाँ पर भी मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा हो पाएगा। उत्तर प्रदेश के 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा देता हुआ ये नजर आएगा। तो लगातार इसको लेकर जो है वो काम चल रहा था। और इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर सुनील जी। जी धन्यवाद। सुनील जी, जेवर एयरपोर्ट 2021 में जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, और इससे काफी ज्यादा अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं कि इसके बनने के बाद जो है काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था में भी मदद मिलेगी। फिलहाल जिस तरीके से इसका ट्रायल रन रहा, सक्सेसफुल रहा है, आगे भी क्या इसी तरीके से कुछ दिन और चलेगा यह ट्रायल रन? देखो, निश्चित तौर से ये गौरवान्वित करने वाले पल, और ये 2021 नहीं, आप समझिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने प्रयास किया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते हुए ये प्रोजेक्ट फलीभूत हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें इंटरेस्ट दिखाया। यही उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी 2021 अन्यास हो अभी। सुनील जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। 4.5 चलिए, फिलहाल किसी तकनीकी खामी के चलते जो है आवाज सुनील जी के हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। पहले ट्रायल रन का जो एक वीडियो भी सामने आया वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें एक विमान आपको नजर आ रहा है। और पहला ट्रायल रन जो है सक्सेसफुल रहा है। दिल्ली से जो कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर आई थी उसकी लैंडिंग सक्सेसफुल रही है, और इसी तरीके से अगर जो है सक्सेसफुल लैंडिंग और टेक ऑफ यहाँ से होते रहे और पूरा अध्ययन इसका किया जाए, कोई भी खामी अगर इसमें पाई जाती है तो उसको जो है ठीक किया जाएगा।
और उसके बाद बताया जा रहा है कि अप्रैल तक यहाँ पर संचालन जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी अगले साल अप्रैल तक इसमें संचालन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे कि आपने वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही 2021 में इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन इससे पहले भी तमाम जो सरकारें रही अन्य पार्टियों की, चाहे वो बीएसपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, उनकी ओर से भी प्रयास किया गया कि इसका काम हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो उनकी दिलचस्पी इसमें दिखाई गई, उसी के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ है और अब यहाँ पर ट्रायल रन चल रहा है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, सुनील जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, जैसे कि आपने बताया कि अर्थव्यवस्था में भी एक महत्वपूर्ण योगदान ये देता हुआ नजर आएगा। नहीं, बिल्कुल। और आप देखिए कि पीछे जो ट्रेन का कॉरिडोर बनाया गया है, निश्चित तौर से उसके साथ साथ एक समावेशी कार्यक्रम को चलाया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि एयरपोर्ट मिलता है तो निश्चित तौर से जो आप कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत सहायक होगा। और इतनी कम समय में इसको चालू करना एक बड़ी चुनौती थी। निश्चित तौर से डॉक्टर साहब जो हैं नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के डॉक्टर अरुणवीर सिंह, उनका आर्थिक प्रयास रहा, दिन रात काम चला है। कई बार हम लोग रात में भी गए, रात में भी हमने देखा कि वहाँ काम चलता हुआ मिला। तो निश्चित तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्य योजना थी और जो एक सपना था, उसको जल्दी ही साकार करने में अधिकारियों की भूमिका भी है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, कई सरकार, कभी एयरपोर्ट आगरा जा रहा था, कभी एयरपोर्ट फिरोजाबाद जा रहा था, कुछ लोग यहाँ के एयरपोर्ट यहीं रखना चाह रहे थे। लगभग 1.5 दशक से जो एयरपोर्ट फंसा हो और ये सरकारें प्रदेश की निर्णय नहीं कर पा रही हो कि आखिर में ये एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए ही मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट था वो सफल हो पाया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान, विशेष योगदान माना जाएगा। ठीक है सुनील जी, तो जैसे कि आपने बताया कि रात के समय में भी यहाँ पर काम चला था, 50 मिलियन मैन आवर्स इसको बनाने में लगे, यानी एक कर्मठता यहाँ पर नजर आई है लोगों की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक दिलचस्पी इसमें रही और इसी के फलीभूत जो है यहाँ पर होता हुआ नजर आया और ये बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और इस चर्चा के लिए।